नमस्कार, मैं हूं सृजना मित्तल from Devditi Foundation. Devditi Foundation is a well-known name in the lockdown now. We are doing transformation series and we are doing these sessions almost every second day. And today is one of our 100 plus sessions. We have already finished 100 sessions already. And when Sunita ji was introduced to me, I called her और सुनीता जी मेरे को बोली मैं तो ना बहुत आई एम अ हॉर्टिकल्चरिस्ट आई कैन टेक सेशन ऑन प्लांट्स बट ऐसे नहीं नहीं सुनीता जी आप प्लांट्स में तो लेंगी बट आप पहले टेबल सेटिंग पे सेशन लीजिए हमारा एंड शी वाज very gracefully she accepted that she will take a session for us on table setting और हमने यही सोचा हमने कहा ठीक है प्लांट्स पे भी कराएंगे बट पहले हम अपने घर के अंदर में थोड़ा टेबल हालांकि आजकल कोई गेस्ट नहीं आ रहे हैं बट देन व्हाई नॉट आई मीन हम 4 लोग घर में बैठ के अपनी टेबल सेट करके खाना खाएं ऑल द मोर फीलिंग ऑफ बीइंग फेस्टिव so today we have Sunita ji with us who's going to tell us about some table settings and she's going to use plants I don't know what all that Sunita ji can tell us better. So Sunita ji, welcome on board Devditi Transformation Series. Thank you so much, Srijna ji, and hello everyone. I hope all of you are doing good and enjoying this quarantine period with your family. And thank you, Srijna ji, for allowing me to come on this beautiful platform of Devditi. And Devditi work in the field of women empowerment. Women empowerment is remarkable. I encourage what you are doing, and I'm proud to be a part of it. So guys, this is Sunita Chandak from Style and Splendor, where I am giving you some simple and tips and tricks on table styling. So today I will be introducing my first style. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या कुछ भी है तो वो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं. I will be happy to answer all the questions. So मैं आपको अपना पहला स्टाइल इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ. So let's get started. Yes please. Okay. डालो इसको. हाँ नहीं अभी नहीं. Do we focus on this? Yeah. So introducing you the first theme, Sylvan rustic theme. आपको सिल्वन से क्या समझ में आता है? कोई जवाब देगा इसका? सिल्वन मीन्स वुड. तो आज मेरी जो थीम है वो सिल्वन रस्टिक थीम है. Bring it to your formal dining room to add the aura of natural and earthy elements in elegance. Here I used this wooden tray and these logs, these maize peels, and some pebbles and she shells, leaves, branches, stems to enhance the finished creativity when we sit down for a lunch or dinner with our near and dear ones. So this is our, did we come this side? This is our jute mat. Here you can see that can be easily used for day-to-day day purpose और आप दिन में भी इसको यूज कर सकते हो. इस तरह का ये जूट मैट मैंने यूज किया है यहाँ पर. एंड यहाँ पर मैं अपनी प्लेट्स लगा रही हूँ. इट्स डिनर प्लेट एंड साइड प्लेट, राइट. और यहाँ पर मैंने अपनी क्रॉकरी लगाई हुई है. ये पॉकेट है, यहाँ पे मैंने अपनी क्रॉकरी को फिक्स किया है. अब आप ये वुडन ट्रे देख रहे हैं. इसके अंदर मैंने ये हेयर डाला हुआ है टू गिव इट अ नाइस लुक. कोई भी टेबल स्टाइलिंग करने से पहले आपको एक थीम को माइंड में रखना होता है कि हमारी थीम कलर कॉम्बिनेशन के साथ चल रही है या फिर आपको कोई तो हमारे जो पूरा लेआउट है एक थीम के साथ होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है.
तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने वुड का और जूट का यूज किया है पूरी थीम के अंदर। और ये सारी जो चीजें हैं ये सारी होममेड है, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा है, सब मैंने घर में बनाया है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये वुडन ट्रे है, मैंने यहाँ पर यूज करी है, इसके ऊपर मैंने ये हेयर डाला है। अगर आपको इसको और ब्राइट करना है तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर थीम। ये बॉटल्स हैं जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, मैंने इनको रीयूज किया है डिजाइन करके। एंड ये हमारे घर में कैंडल्स तो सबके घर में होती है, तो आप देख रहे हैं मैंने इस कैंडल्स को चारों तरफ से ये ट्री के नीचे ये ब्रांचेस गिर जाती हैं, उनको कट करके और इनको पेस्ट करके इस कैंडल को डिजाइन किया है। Now I will be placing my stuff and I will show you how it looks. So it's a wooden, you can say wooden platter or something to give the height of my stuff. So I will be placing here. And ये जो आप देख रहे हैं मेज पील्स, ये मैंने जो भुट्टा होता है उसको सुखाकर इसकी ये चुटिया बनाई है हाथ से। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। दीज आर द वुड्स, आप देख रहे होंगे ये मैंने सब कलेक्ट करी है, ट्रीज के वहां पे गिरी रहती है वहां से कलेक्ट करी है और इनको थोड़ा मैंने डेकोरेट कर दिया है, आप देख रहे हैं इस तरह से। And now I will be placing them randomly. And again, कैंडल्स सबके घर में होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं, तो मैंने इन कैंडल्स के ऊपर ये जूट की रोप लगा के इनको डेकोरेट किया हुआ है, और आप भी कर सकते हैं इनको। सुनीता जी, आपका थोड़ा फोकस कैमरे का नहीं आ रहा है, आपकी कैंडल्स हमें दिखी नहीं, थोड़ा सा फोकस आई थिंक। ओके, कैन यू सी नाउ? यस, दिस इज बेटर। ओके, सो ये कैंडल्स हमारे घर में सबके पास अवेलेबल होती है, तो मैंने क्या किया है इनके ऊपर ये जूट से इनको कवर कर दिया है सारी कैंडल को। तो आप लोग भी ये इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, एंड इट्स वेरी इजी। एंड आप देखिए उसके बाद कितना सुंदर लग रहा है ये। तो अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगी। ये छोटी कैंडल्स हैं, इनको भी मैंने आप देख रहे हैं कि ट्विक्स के साथ सबको मैंने वुड्स के साथ इनको डेकोरेट किया है। सृजना जी, आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, यस यस प्लीज। ओके, परफेक्ट। Say thank you to everyone. Thank you everyone. So these are the bottles. ये मेरे पास मिल्क की bottles थी, तो मैंने इनको डेकोरेट करके इनको रीयूज किया, आप देख रहे हैं। और इसमें मैंने जिप्सो लगाए हैं फ्लावर्स। ये फ्लावर्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं, आप इनको ड्राई करके भी यूज कर सकते हैं, इनको लाके आप ड्राई कर लीजिए फिर इनको आप अपनी थीम में यूज करिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉटल ली है अपनी मिल्क की बॉटल, और इसको ये डेकोरेट कर दिया जैसे आप देख रहे हैं। And I will be placing it here. Similarly, आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा डिफरेंट डेकोरेशन किया है। ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज किया हुआ है यहाँ पर, स्टिक्स का।
अगर आप इसके अंदर रियल स्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं, रियल फ्लावर्स का भी यूज कर सकते हैं, इज टोटली अप टू योर चॉइस। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये नेम कार्ड होल्डर्स बना रखे हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो आप अपने गेस्ट को स्पेशल फील करा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज टोटली हैंडमेड। ये वुड के स्टिक्स लगा के आप देख रहे हैं पीछे, मैंने ये कार्डबोर्ड लगा के इसको बनाया है। और ये मैंने नेम्स लिखे हैं, तो आप किसी का भी नाम लिख के, जो आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं उनको आप स्पेशल फील कराने के लिए इस तरह से नेम कार्ड्स बना सकते हैं। और आई एम प्लेसिंग इट हियर। And these are my napkin holders. As you can see, ये भी मैंने जूट से बनाया है। और मैंने इसके अंदर आप देख रहे हैं नैपकिन भी मैचिंग का रखा है विद वुड्स एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि मेरी थीम बिल्कुल परफेक्ट लगे। And now I just fold it like this and I'm placing it inside, as you can see. So now it's ready. This is also handmade and I'm placing it here. मैं इस साइड भी लगा रही हूँ यहाँ पर, सेम वे जैसे मैंने वहां पर लगाया था। आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी टेबल लेआउट कर रहे हैं तो एक तो आपको थीम ध्यान में रखना है, कलर कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, और दूसरा आपको जो क्रॉकरी लेनी है वो आपको हमेशा न्यूट्रल कलर की लेनी है। उससे क्या होता है, न्यूट्रल कलर से आपकी न्यूट्रल कलर की क्रॉकरी लेने से वो हर थीम के साथ मैच कर जाती है। तो मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि मैं न्यूट्रल कलर की क्रॉकरी यूज करूं अपनी टेबल स्टाइलिंग में। तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने स्टार्ट करा है। और नाउ आई विल शोइंग यू these are my water bottles। और ये मेरी वाटर बॉटल्स हैं नॉर्मल, और ये मैंने कवर बनाया है। नाउ आई विल बी प्लेसिंग इट हियर एंड आई जस्ट इसको मैं इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पास्ता भी लगाया है। कैन यू आप देख पा रहे हैं? yes we can see। तो मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है इसको। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज माई बॉटल एंड यहाँ पे मेरी कटलरी आ गई, यहाँ पे मेरा नेम कार्ड आ गया है, यहाँ पे मेरा नैपकिन आ गया है, और दिस इज माई मेन्यू ऑफ द डे। आप अभी मैंने इस पे कुछ लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी मैंने पूरा वुड का बनाया है, आप इसके ऊपर अपना मेन्यू लगा के भी गेस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे आप देख रहे हैं मैंने ये वुडन स्टिक्स को डेकोरेट किया है, इसमें थोड़ा पास्ता मैंने डाल दिया है इस तरह से। एंड यहाँ पे मैंने 2 वाइन के ग्लासेस रख दिए हैं, जस्ट यू नो कि पूरा एक थीम मेरी बन गई है, मेन्यू ऑफ द डे एंड वाइन ग्लासेस एंड एवरीथिंग इज देयर। नाउ आई गिविंग यू 2-3 ऑप्शंस ऑफ दिस थीम, लाइक ये मेरे पास वुडन लॉक्स हैं, तो मैंने वुडन लॉक्स के ऊपर मैंने एक पेपर कटिंग करके दिया, डिफरेंट आप देख रहे होंगे ऐसे फूड से रिलेटेड, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया है एंड नाउ शोइंग द डिफरेंट 2-3 आइडियाज कि कैसे आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास वुड नहीं है सपोज, तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप कार्डबोर्ड काटिए राउंड में और उसके ऊपर ऐसे ब्लैक पेपर से चिपका दीजिए और कुछ भी फूड से रिलेटेड कोट्स लिख दीजिए इसके ऊपर। अब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट फोल्डिंग इट लाइक दिस एंड मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसको। और व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेसिंग दिस ओवर इट लाइक दिस। तो एक तरीका ये भी है, आप नैपकिन को ऐसे फोल्ड करके रख दीजिए और उसके ऊपर आप ऐसे कुछ भी कोट्स बना के गेस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ओके,
Second, these are my small wooden logs. तो मैंने एक नेम कार्ड होल्डर ये बनाया है, दूसरा मैं अपना एक नेम कार्ड होल्डर यहाँ पे ये भी रख सकती हूँ, और यहाँ पर मैं गेस्ट का नाम लिख के इसके अंदर ये ऐसे आप देख रहे हैं मैंने कट कराया हुआ है, तो आप इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं. और here what I am doing, I'll tell you. रोशन वो बॉटल्स का है, रोशन वो बॉटल देना ना दोनों. तो आप इस तरह से लिख के भी गेस्ट को बॉटल दोनों. So this is another method, मतलब another you can say it's a different idea altogether. अब मैं इन लॉक्स को आपको एक चीज और दिखा रही हूँ, मैं कैसे को यूज करूंगी with this. And some मेरे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक केन बास्केट है, you can see इसमें मैंने एक कटोरी लगा दी है. सो इसमें आप गेस्ट को कुछ भी सर्व कर सकते हैं, लाइक चटनीज एंड ऑल दैट, सॉसेस, एनीथिंग, एंड यू कैन प्लेस इट anywhere on this like they look very pretty and you know. और अगर आपको चटनीज वगैरह नहीं रखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप किसी गेस्ट का नाम लिख के भी you can place it like this only. So ये जो लॉग्स आप देख रहे हैं मैं इनको यूज कर रही हूँ, सॉल्ट एंड पेपर मैं इनके ऊपर लगाऊंगी ऐसे. इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे थीम में यूज किया है. और अगर आपके पास कोई खाली बॉटल ला दूं, आप इन डॉलीज का भी यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई एम्प्टी बॉटल है सपोज, और आप उनको आपको आपके पास सपोज जूट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉटल के आई शो यू, जैसे ये बॉटल है सपोज, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके कोई भी बॉटल पे, इसका साइज नहीं है, यहाँ पे आप इसको अच्छा सा कोई रिबन से बांध टाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई जूट की रस्सी के साथ इसको टाई कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई लेसिस पड़ी हो, पुरानी लेसिस, आप उनका भी यूज कर सकते हैं. हमारे पास पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे क्रोशिया के फ्लावर्स होते थे, आप उनको भी यूज कर सकते हैं. तो यू नो इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी. आपके पास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमको उनको कैसे यूज करना है. आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख रहे हैं सब हैंडमेड है, और सब मैंने अपने घर से सबको रीयूज किया है दोबारा से. So I'm placing here. Now मैं इसको हटा रही हूँ, and what I am doing, I am placing my these things. Now I will be using here. So एक तरीका मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं इस तरह से भी लगा के इनको यूज कर सकती हूँ अपनी कोट्स को. और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टू मेक योर गेस्ट फील स्पेशल. ये मेरे पास एक जार था मेरे घर में, मैंने इसको डेकोरेट किया है, और आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर पास्ता फिल किया हुआ है, राइट. और ये मैंने पिक्चर्स निकाल के इसको स्टिक कर दिया पीछे से. अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं एंड आप उनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, एक तो मैंने ऑप्शन आपको ये बताया है, एक मैंने वुड के साथ बताया था, एक आप इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, आप उनकी कोई भी पुरानी पिक्चर्स निकालिए, या उनकी रिसेंट जो फेसबुक पे पिक्चर्स हैं, क्योंकि वो उनकी फेवरेट पिक्चर्स होती हैं, तो आप उनकी वो पिक्चर्स निकालिए, या वो कहीं घूमने गए हो, आप उनकी मेमोरीज को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए आप उनकी वो पिक्चर्स निकालिए. एंड आपको क्या करना है, जस्ट insert it like this, and आपको कहीं भी लगा सकते हैं, आप एक साथ भी रख सकते हैं इनको इस तरीके से. वुड यहाँ पे दिस तरह. I'm giving you an option कि आप किस तरीके से अपने गेस्ट को स्पेशल फील करा सकते हैं. मैं आपको एक वुड का बताया, एक ये जार सबके घर में होते हैं, तो आप इस तरीके से भी, और ये कोट्स आप घर में बना सकते हैं, you can use. तो there are multiple ways of you know. और जैसे ये वुड के ये
मिलते हैं मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इन पे भी गेस्ट का नाम लिख के उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। और आप इस तरह के उनका भी यूज कर सकते हैं, और इनको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अवेलेबल है इजीली। व्हाट यू कैन डू, ऐसे ग्लास ले, जो ग्लास रखते हैं उसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए इसको। तो आप के पास इतनी सारी मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप किस किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे आप बना सकते हैं। रोशन इधर आओ। जैसे, और ये मेरे पास कुछ वुडन स्टिक्स हैं, मैंने इनको भी डेकोरेट करके रखा हुआ है। अगर सपोजिंग आपको अपनी क्रॉकरी नहीं लगानी है यहाँ पर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंसर्ट योर वुडन स्टिक ऑल्सो, यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके साथ फोक भी आप वुडन यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी था नहीं तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाई, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे एक लगाया है, ये दिखाया आपको कि यहाँ पर आप इस तरीके से वुडन का भी यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जूट के मैट का यूज किया हुआ है। रोशनी हटा दो सब। ये मेरे पास एक वुड का प्लेटर है, यू कैन से प्लेटर, और कह सकते हो आप। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना ये लॉग यहाँ पर रखूंगी। अभी मेरे पास बड़ी डॉलीज नहीं है तो मैं आपको इसी में समझा रही हूँ। इसको आप इस पे प्लेस करिए अपनी डॉलीज को, एंड फिर आप अपनी क्रॉकरी को यहाँ पर रखिए। एंड आप जैसे, ये मेरे पास एक नैपकिन है, फैब्रिक का नैपकिन है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैन जस्ट फोल्ड इट like this, again you fold it and again you fold it, right? तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड मैं इसको एक नॉट लगा दूंगी, ये मैंने एक नॉट लगा दी है इस पे, एंड आई विल जस्ट प्लेस इट लाइक दिस ऑन माय टेबल, राइट? और अगर आपके पास इस तरह का वुड का ट्रे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी घर में से कोई भी वुडन ट्रेस निकालिए, आप उनको कंबाइन करके भी इसको प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है, वुडन ट्रे भी नहीं है, तो आप अगर आपके पास इस तरह का कोई वुड का कोई प्लेटर है तो आप इस तरह का वुड का प्लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो नेसेसरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी ट्रे को यूज करो, आप कंबाइन करके भी इनको लगा सकते हो। आपके घर में अगर कोई ट्रेज है, सिमिलर ट्रेज होनी चाहिए, सो आप इस अरेंजमेंट को पूरा यूज कर सकते हो। सो मेरा ये फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट, यू कैन से फर्स्ट स्टाइल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड It's beautiful. एक बार दिखा दीजिए दिव्या सबको। Any questions regarding this arrangement, you can ask me. मैं आपको कुछ टिप देना चाहूंगी। जैसे आप क्या है, टेबल क्लॉथ इज नॉट एडवाइजेबल फॉर रूटीन पर्पसेस, as you would want the beauty of your dining table to pop out. Personally मुझे लगता है कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल की ब्यूटी को छुपाऊं, मैं उसको बल्कि दिखाना चाहूंगी। मेरे को पर्सनली मेरा ये होता है। बट अगर आप कोई थीम बेस्ड टेबल स्टाइलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप टेबल क्लॉथ का या रनर का यूज करेंगे तो उससे क्या होता है कि वो टेबल क्लॉथ क्या है, गिव्स यूनिफॉर्मिटी टू द टेक्सचर टेबल्स। और ग्लास की टेबल होती है
तो उससे क्या होता है, उसका जो उसके ऊपर नहीं लगाते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ या रनर लगा देंगे, तो जो उसके ऊपर सामान रखा है, आपने जो भी आपने चीजें यूज करी हैं, उससे उनको और एनहेंस करता है वो। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आई एम यूजिंग दिस वुडन ट्रे, सो मुझे उसकी नेसेसिटी नहीं लगी है। तो अगर आप कभी अपने घर में कर रहे हैं तो आप डे टू डे पर्पस में लगाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वाइल डूइंग मतलब अगर आप कोई वाइल स्टाइलिंग योर टेबल, ऑलवेज स्टिक टू वन थीम, इट कैन बी इवेंट ओरिएंटेड और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दैट वी डू, ओके। और तो रनर का भी यूज कर सकते हैं आप और टेबल क्लॉथ का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं किया, आपको मैंने रीजन बता दिया है, बट मैंने उनका आपको डिफरेंशिएट भी बता दिया है कि मतलब किस तरीके से आपको टेबल क्लॉथ यूज करना है और रनर को यूज करना है। तो हम अपने, हाँ जी, क्वेश्चन आया है जी, कि मतलब जो अपने अच्छा अरेंजमेंट, अमेजिंग अरेंजमेंट, यू आर लेफ्ट विथ लेस स्पेस टू पुट फूड एक्सेट्रा। सी दिस इज अ सिट डाउन लंच। Am I audible to all? yes, आप बोलिए So प्लीज। it's a sit down dinner। अगर जैसे आप अगर सपोज आप बफे कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, I'll show you। आप इस तरीके से कोई भी नीचे बेस लगाएंगे, ठीक है, आप ऐसे पूरा एक लाइन में ऐसे लगा दीजिए वुडन जो भी अगर आपके पास अवेलेबल है। और आप क्या करिए, आपको क्या करना है, आप दोनों साइड पे अपनी चीजों को सर्व कर सकते हैं, दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो। सो आपको क्या करना है, ये जो प्लेट्स हम यूज करते हैं, आपको 10-15 प्लेट्स लेके आप एक साइड पे रख दीजिए यहाँ पर, और कुछ प्लेट्स आप उस एंड पे रख दीजिए, द अदर कॉर्नर ऑफ द टेबल। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक साथ खूब सारी प्लेट्स टेबल पे रख दो। आपके पास अगर जब खत्म हो जाए आप दोबारा लेके आइए, और मेरे को रहता है कि आप एक इस कॉर्नर पे रखिए, एक उस कॉर्नर पे रखिए, रीजन बीइंग कि गेस्ट को है मूवमेंट करने की जगह मिल जाएगी, मतलब वो इकट्ठा एक ही जगह पर नहीं खड़े होंगे। परफेक्ट। सो आप इस तरीके से कुछ भी यूज करके आप यहाँ पर अपनी चीजों को जो आप सर्व करना चाहते हैं उनको इनके ऊपर रखिए, और उस साइड भी आप रख सकते हैं, तो फिर आपको इजी हो जाएगा खाने में। लेकिन सुनीता जी, जैसे अगर हमें उसी टेबल पे बैठ के खाना है तो फिर कैसे होगा? हेलो। हाँ, तो व्हाट यू कैन डू, जैसे मैंने यहाँ पर मेन्यू ऑफ द डे लगाया हुआ है, आप इसको हटा सकते हैं, आप सिर्फ सेंटर पीस को रहने दीजिए, रेस्ट यू कैन रिमूव, जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया है। खाना आएगा तो आप इसको हटा दीजिए, और देखिए आप, मैंने यहाँ पे मेरा मैट पूरी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सर्विंग के जो बाउल्स वगैरह आप इधर इस साइड पे भी सर्व कर सकते हैं, उस साइड पे भी लगा सकते हैं एक कॉर्नर पे। और अगर आपके पास कोई दूसरा एरिया है साइड टेबल के साथ में, अगर कोई सामने कोई टेबल कंसोल है या कुछ भी रखा हुआ है, मतलब एक बार दिखाना वो सामने वाला एरिया, तो आप इस तरीके से वहां पे भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इजीली सिट डाउन लंच या डिनर आप कर सकते हैं। और बुफे मैंने आपको बताई दिया, अगर आप सबको हटा दीजिए और यहाँ पर आप अपना बुफे का सारा सामान आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट थीम पे चले अब। हाँ बिल्कुल, किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है? एनी अदर क्वेश्चन? आप देख लीजिए एक बार पूरा सेटअप मैंने कैसे किया है। मेरा पिक्चर भी ले लो, सुंदर। वन सेकेंड जल्दी करना है ना, चम्मच देना रोशन, और इसका वो देना नेम कार्ड। वन सेकेंड, लेट मी वन सेकेंड, नेम कार्ड और नैपकिन देना, नैपकिन। So this is the final look। राजू इसको बढ़ाओ।
So एक टिप और मैं आपको देना चाहूंगी. थर्ड टिप मेरी है कि इट वुड बी दैट यूज अ लॉट ऑफ कैंडल्स and play around floral arrangements because it adds a different aroma altogether to your entire table setup. हमारे घर में कैंडल्स अवेलेबल होती हैं सबके घर में, और हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी होते हैं. अगर आपको रियल फ्लावर्स यूज करना है तो आप रियल फ्लावर्स करिए. तो वो एक डिफरेंट अरोमा, उनको लगाने से डिफरेंट अरोमा आ जाता है आपकी टेबल सेटिंग पे. और अगर आपके इफ देयर इज अ सिट डाउन डिनर आपके घर में, अगर सिट डाउन डिनर है तो कीप द हाइट ऑफ द सेंटर पीसेस थोड़ा सा लो रखिए आप, सो दैट द पीपल कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली. But while you are doing a buffet, you can definitely play a lot by using risers with the heights of the crockeries, with the heights of the centerpieces. So one of the most common riser जो होता है वो stack of books होता है. बाकी जब आप मेरे कोर्सेज करेंगे तो मैं उनमें काफी कुछ सिखाती हूँ कि राइजर्स कैसे डेवलप करने हैं हमें. अगर हम बुफे कर रहे हैं तो राइजर्स कैसे हम राइजर्स किस किस चीजों से यूज कर सकते हैं, और हम अपनी क्रॉकरी को कैसे हाइट दे सकते हैं. तो ये सब मेरे कोर्सेज में काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको. और उसमें मैं कुकिंग से लेके फूड प्लेटिंग और फूड प्लेटिंग एवरीथिंग मेरे उसमें होता है कोर्स के अंदर. तो अब हम नेक्स्ट स्टाइल पे चलते हैं. रोशन आओ, जो वीडियो ऑफ कर दे दो. सृजना जी मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मैं ये हटा रही हूँ सामान और मैं आपको दूसरा अरेंजमेंट दिखा रही हूँ. All right, thank you जी. ओके. Sapna ji, are you there? I would request Sapna ji to. Of course, Anju ji, we will definitely. I can see a question in the chat box which says, "Can we have more plants?" बिल्कुल अंजू जी, हम plants के लिए भी कराएंगे. Yeah, why not? You can, yes, you can use plants also. आप क्या करिए, एक प्लांट कोई भी एक प्लांट लीजिए. राजू बाहर से एक प्लांट लेके आना छोटा, जल्दी रोशन जल्दी करो. मैं आपको बताती हूँ कि आप प्लांट को भी अपनी उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें यूज करी हैं. आप देख रहे हैं मैंने फ्रेश फ्लावर्स भी यूज करे हैं, मैंने आर्टिफिशियल भी यूज करे हैं. तो मुझे लग रहा था कि इट्स सफिशिएंट बिकॉज इट्स गोइंग वेरी वेल विद माय थीम. रोशन देखो वीडियो ऑफ कर दूंगा. Now I will be sharing a second style. It could be a console or dining table with some basic elements that you have at home. Artificial flowers foliage, and in fact if you have a garden or Sunita ji, आपका video is off. Can you please switch on the video? वीडियो ऑन करो ना. 1 सेकेंड मैं टेबल लगा रही हूँ अपनी, फिर ऑन करती हूँ मैं वीडियो. ठीक है, 1 सेकेंड, अभी नहीं दिखाना है. तो अगर आपके घर में if you have a garden or if you have a few plants at home, you can pick up a few things from your garden and add it to your table. जो मेरा नेक्स्ट सेटअप है वो मैंने नहीं करना ना इसको. I will show you what I have done with things that I have picked up from my lawn. आप देखेंगे मैं आपको ये वाला दिखाने जा रही हूँ. इसमें मैंने सारी चीजें अपने गार्डन से पिकअप करी हैं और उनको यूज किया है. सो हैव विद मी. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है.
स्प्रे में चलाना बाद में चाहिए। रोशन जाओ। One second, please. Excuse me for 1 minute. या अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेटिंग। ये सारी चीजें मैंने अपने गार्डन से पिक करी हैं। कुछ भी इसके अंदर मार्केट से मैंने कुछ भी नहीं लिया है। आप देखिए, I have with me these broken pieces of bark. अगर आप देखेंगे, ये मैंने bark पेड़ के नीचे से कलेक्ट करी थी और मैंने इसको साफ करके इसको 1 सेकेंड। रोशन इधर आ, कोई डब्बा था ना, कहाँ गया? दिस इज लिटरली फ्रॉम द गार्डन दिस। और ये स्प्रे पेंट है। तो मैंने क्या किया, इस बाग को कलेक्ट करके, ये बाग है, इसको ला के इसको पहले क्लीन किया। फिर उसके बाद मैंने इसको फेविकॉल से इसके ऊपर एक लेयर लगाई और फिर मैंने ये इसके ऊपर ये कलर का स्प्रे कर दिया। सबको वीडियो दिखाई दे रहा है? Yes, दिख रहा है। Am I audible to all? Yes, please. ओके, परफेक्ट। तो फिर इनको स्प्रे किया मैंने यहाँ पर। एंड इस तरह के देखिए आप छोटे छोटे ये वुडन पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने ट्री के नीचे से कलेक्ट किया था और ये बड़ा पीस मैंने ट्री के नीचे से कलेक्ट किया था। रोशन हटा दो। ओके, तो फिर मैंने इसको पेंट कर दिया ब्रॉन्ज कलर में। मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज एक्चुअली समथिंग आई फाउंड बिलो द ट्री। मतलब मेरे को ट्री के नीचे मिला और मेरे दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ कि वाई नॉट यूज इन माई टेबल स्टाइलिंग। और ये आप देख रहे हैं, मैंने ये इसके अंदर फर्न्स को हल्का सा गोल्डन ये वाला स्प्रे मार के फर्न के ऊपर एज यू कैन सी इस पे मैंने स्प्रे मारा और इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। नथिंग, कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स सो इजी। और इसमें मैंने जिप्सो फ्लावर्स और थोड़ा सा रोज पेटल्स डाल के और कैंडल्स जला के इसको मैंने एक कॉर्नर पे यूज किया है। सेकंड कॉर्नर पे मैंने क्या किया, ये मैंने इसको थोड़ा सा, और ये जो मेरा ब्रोकन पीस था बाग का, मैंने उसको अंदर डाला और मैंने एक बंच रोजेस का यहाँ पे लगाया है। दीज आर आर्टिफिशियल रोजेस, आप इनको का भी यूज। साइड में एक फर्न्स की यहाँ पे एक फॉलिंग करती हुई फर्न्स लगा दी है, थोड़ा यहाँ पे गिर रही है, थोड़ा उस साइड पे। और दिस इज ये तो मनी ट्री है, एज एवरीबॉडी नोस। मैंने उसका एक लीव्स प्लग करी, एक लीव्स को मैंने ऐसे फोल्ड करा, इस तरीके से हाफ फोल्ड किया और मैंने इसको अंदर डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसको पीछे से ऐसे लगा दिया। उसके बाद ये आर्टिफिशियल यूकेलिप्टस है, ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का, और दीज आर रियल फ्लावर्स। तो मैंने यहाँ पे रोजेस का मतलब मैंने वाइट, ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया है। इफ यू कैन सी लाइक टोटल मैंने रेड, वाइट एंड ग्रीन मेरी थीम में है, चल रहा है। और ये मैंने कैंडल लाइट्स का यूज किया हुआ है यहाँ पर। एक बार मैं लाइट ऑफ करके इसका इफेक्ट दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है? Now, so
ये रात को बहुत ही सुंदर लगता है अरेंजमेंट। और आपके पास अगर कैंडल लाइट्स, ये कैंडल टी लाइट्स नहीं है, इस तरह के होल्डर्स नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, फेरी लाइट्स भी आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। रोशन, फेरी लाइट्स देना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अपने जलाना है इसको। सो व्हाट यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की फेरी लाइट्स का भी यूज कर सकते हैं, दे लुक वेरी प्रिटी। आप इसको कहीं पर भी छुपा दीजिए, इसको अंदर की साइड पे, ताकि दिखे ना। और आप इसको चारों तरफ इस तरीके से टर्न करो। दूसरा लेके आना एक और। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट लुक्स अमेजिंग। रात के टाइम में ये बहुत ही सुंदर लगता है पूरा सेटअप। दूसरी लाइट दो। इट्स अवेलेबल, इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, Amazon। इधर से लगा, इसको यहाँ छुपा। इसको हमेशा हाइड कर देना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। या तो आप किसी चीज के पीछे डाल दीजिए, या कहीं पर भी और इसके नीचे डाल दीजिए, कहीं पर भी आपके जहां पर जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें इसको मत दिखाइए, बिकॉज इट वॉन्ट लुक नाइस। जल्दी। वेट वेट, हाँ इसको फैला दे, बस इसको रखता जा। अच्छा, वन थिंग गाइस आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैंने क्या किया है, फेरी लाइट्स को अगर आप देख रहे हैं, वन सेकेंड, मैंने इनको पहले से ये जिगजैग डिजाइन बना के रख दिया है। अब आप पूछेंगे कि मैंने इनको ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको प्लेस करते हैं, अगर ये बिल्कुल सीधी होती है तो बहुत अच्छे से नहीं लग पाती है। तो आप इसको जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप बिफोर हैंड इसको रेडी करके ऐसे जिगजैग बना के रख लीजिए, और उसको लगाना भी बहुत आसान होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है ये। रोशन डालो ना इसके अंदर, टर्न पूरा डाल देना। पूरा इधर तक कर दे। सो So ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स है ना ये? या बट बहुत अच्छी लगती है फेरी लाइट्स लगा के। वेट, और आप उनको पहले जिगजैग करके पहले से ही रख दीजिए। यस, नाउ यू कैन सी द इफेक्ट। बंद कर लाइट, बंद और बंद कर। बस 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 बस। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। दूर से दिखा देगा। सो अभी जैसे दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो और जला दे, तो हम उसमें इसको आप बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्लेसमेंट बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा के मैट्स यूज किए हैं। आप मार्केट से ऑर्गेन्जा का आप मार्केट से ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले आइए कोई भी कलर में, और इसको राउंड शेप में और ये कटवा के इसको पीको करवा लीजिए। और ये बहुत ही मतलब कॉस्ट फ्रेंडली है, कोई महंगा नहीं आता ये। तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कलर्स में है, तो मैं इनको अपने अरेंजमेंट्स में यूज करती हूँ, एंड दे लुक वेरी प्रिटी। तो अब देखिए, मैं इसको बता रही हूँ कि हमारी थीम है वो थोड़ी फेस्टिव थीम है, तो आई एम यूजिंग ऑल द ब्राइट कलर्स हियर। सो नाउ दीज आर बीडेड मैट्स। ये भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनको भी पे कहीं पे भी खरीद। अब कभी ये गंदे भी हो जाए तो आप क्या करिए, टेक अ ब्रश और उसके ऊपर ऐसे ब्रश को चला दीजिए, तो उससे क्या है, इसकी डस्ट भी साफ हो जाएगी। नाउ आई एम प्लेसिंग इट हियर। सो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये रोज बना के इसके अंदर लगाया हुआ है। मैं आपको जल्दी से आपको बता दूं कि कैसे आप जल्दी से ये ट्रिक सकते हैं। रोशन, ने फूक देना।
और आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक यू कैन प्लक अ लीफ, और आप इसके अंदर एक लीफ भी लगा सकते हैं। एक मिनट, लीफ देना रोशन, आपको मैं बताती हूँ जल्दी से कैसे में बनाना है। बहुत इजी है, वेरी सिंपल। कभी आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप इसको फटाक से बना सकते हैं। जस्ट इसको सेंटर में रखना है एंड जस्ट फोल्ड इट, फोल्ड इट, फोल्ड इट, फोल्ड इट, फोल्ड इट, फोल्ड इट। ये देखिए, फोल्ड इट। ये आपका, एक और देना मुझे, ये रोज बन के एक कप देना है साथ। नो नो, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। इनको दिखा, प्लेट भी देना। So it's ready, and now you place it like this. So it's very simple and बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। और मैं आपको एक दो नैपकिन्स का और दिखा, एक चम्मच दे दे जल्दी से। जैसे आपने एक नैपकिन लिया, what you do, ये आपने नैपकिन लिया, इसको आप हाफ फोल्ड कर दीजिए, राइट। पोक भी दे, हाँ। और इसको क्या करेंगे आप, 1 इंच के करीब इसको आप 1 इंच के करीब आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। पहले आपने क्या लिया, एक स्क्वायर नैपकिन लिया ऐसे, और इसको हाफ फोल्ड किया, राइट, ओके। उसके बाद आपने इसको 1 इंच के करीब फोल्ड किया दोबारा से, और इसको आप टर्न करेंगे, राइट। फिर आप यहाँ से इसको हाफ फोल्ड करिए इस तरीके से, और उसके बाद इसको भी इधर से फोल्ड करिए, और इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड कर दीजिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पॉकेट की तरह ये बन गया है। सो आप क्या कर सकते हैं, you can place your crockery inside like this. और आप इसके अंदर क्रॉकरी नहीं रखना चाहते हैं, सपोजिंग मैं अपनी फोक और स्पून को यहाँ पे रख दूंगी, राइट, राइट हियर, ओके। सो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी मेन्यू कार्ड होल्डर बना के डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जैसे अगर आपने देखा हो लसानिया की शीट है, तो उसके ऊपर आप अपना मेन्यू लिख के इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाती। या फिर आप इसके अंदर किसी गेस्ट का नाम लिख के वो टक कर सकते हैं, या फिर अपनी क्रॉकरी को कर सकते हैं। तो एक फोल्ड मैंने आपको ये रोज वाला सिखाया है, एक मैंने आपको ये बताया, बहुत इजीली बन जाता है एंड इट्स वेरी इजी टू यू नो, बनाना बहुत आसान है। सो सी दिस इज माई, and one more style I'm showing you, बहुत easy, it's very simple and but it looks nice. Just fold it like half, आपने इसको half fold किया, फिर then again half, and what you do, just इसको यहाँ पे ऐसे fold कर दीजिए, ऐसे भी fold कर दीजिए, place your crockery इसके ऊपर रख दीजिए। रोशन वो लाना, लीफ लाना, उधर पड़ी है ना बड़ी वाली लीफ। और वन मोर थिंग, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करिए, गार्डन से लीव्स प्लग करिए, उस पे गेस्ट का नाम लिखिए, और व्हाट यू कैन डू, जस्ट जैसे रोशन वो प्लेट्स देना मेरे को, प्लेट्स दोनों दे दे। ये मैंने गार्डन से, जैसे कोई भी आप प्लांट की लीफ प्लग करिए, उसके ऊपर गेस्ट का नाम लिखिए, और आप इसको इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, जल्दी है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। रोशन वो लाना, बनाना, उधर लीफ पड़ी है ना बड़ी वाली, पत्ती पड़ी है ना वहां पे, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बिकॉज मैंने यहाँ पर रेड ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लीफ को स्प्रे पेंट के साथ शेडेड पेंट कर दिया है। तो मेरी अगर थीम कुछ पर्पल और उस टोन में होगी तो डेफिनेटली आई विल यूज दिस। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप पेंट्स के साथ भी कुछ भी कलर करके हल्का सा इनको यूज कर सकते हैं अपनी डेकोरेशन में। जैसे आई शो यू वन मोर ऑप्शन। जैसे ये बनाना लीव्स है, मैंने अभी इस पे नाम नहीं लिखा है, बट व्हाट यू कैन डू, आप इसको हाफ काट लीजिए और थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको, बड़ी है तो यहाँ पे गेस्ट का नाम लिखिए और अगेन यू, ये बहुत बड़ी है बट मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन। सीजर देना एक मिनट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, आप इसको भी यहाँ पर गेस्ट का नाम लिख के और बनाना लीव्स को भी यूज कर सकते हो। सो दीज आर द फ्यू ऑप्शंस इस स्टाइल के लिए। अब किसी को कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी, एंड माय फोन नंबर इज 9811219303। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरी फेस्टिवल के ऊपर सारी टेबल स्टाइलिंग एंड सब कुछ है मेरी वर्कशॉप, तो अगर आप कभी भी करना चाहें तो you can always contact me. I repeat my number 9811219303. Thank you everyone. ये बार दिखा दो दिव्या दोबारा से। रोशन, इसमें एक क्वेश्चन आया है कि रोज वाला फिर से एक बता दीजिए। जो आपने रोज का डेकोरेशन रोज वाला क्या? रोज वाला जो नैपकिन फोल्डिंग आपने बताई है ना, हाँ। जो ये या श्योर परफेक्ट, या आई विल। ये मेरा नैपकिन है, दिखाई दे रहा है आपको सबको? हाँ जी, यस यस। ओके, सो ये फोक है, ये मेरे पास फोक, मैंने इसको सेंटर में रखा और इसको मैं घुमाती चली गई, जस्ट लाइक ए वन सेकेंड, ये ऐसे, राइट? बस इसको घुमाना है, यहाँ पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घुमाते रहिए इसको ऐसे। And it's done. It's very easy, very simple and looks pretty. और अगर आपके पास यहाँ पे आप सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप यहाँ पर वन सेकेंड, और इसको फैंसी बनाना है तो आप यहाँ पर एक लीफ लगा दीजिए, और इसको और अच्छा और स्पेशल बनाना है तो आप क्या करिए, एक छोटे से कार्ड पे किसी गेस्ट का नाम लिखिए और उसको यहाँ पर लगा दीजिए, तो और भी अच्छा लगेगा, ये सुंदर लगेगा। हाँ, या दैट्स जस्ट फॉर डेकोरेशन। हाँ, नो, जस्ट फॉर डेकोरेशन। जो वुडन टेबल थी, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, ऑब्वियसली हम खाने के लिए तो नॉर्मल स्पून एंड फोक रखेंगे, वो मैंने सिर्फ आपको डेकोरेशन का पार्ट बताया था कि आप किस तरीके से और ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। Sunita ji, there's somebody asking. So Shrejna ji, organza mat. How to make organza mat? How to make organza mat?
मतलब कैसे बना सकते हैं हाँ, इसको? मतलब जैसे आपने बनाया वो आप You इजी से mean, बता रहे थे ना। हाँ, एक बार सी, दिखा ये दीजिए। फैब्रिक इज अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत ही कलर्स में मिलता है। आप फैब्रिक ले आइए और उसको अपने जो भी आपके टेबल मैट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको, ऑब्वियसली ये नीचे रहता है तो थोड़ा सा हमें बड़ा साइज लेना पड़ता है, तो इसको आप राउंड शेप में कट करवा लीजिए। और टेलर से ये देख रहे हैं आप, ये मैंने चारों तरफ मशीन से उससे पीको करवा लिया है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। एंड बहुत सारे कलर्स में आता है। अब इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का डेकोरेशन करना चाह रहे हैं और किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी डेकोर में यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली सारी थीम एक कलर कॉम्बिनेशन को लेके और इवेंट ओरिएंटेड अगर आपकी थीम है तो उसको लेके आपको ध्यान में रख के सब कुछ करना है। तो गाइस आई थिंक सुनीता जी, हमें बहुत यस, मजा आया आपके सेशन में आज। इट इज गुड फन। आई एम श्योर सबने बहुत कुछ सीखा होगा आज। और किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वी स्टिल हैव, वी कैन गिव यू 2 more minutes if anybody needs to ask anything. and thank you so much everyone. I'm really glad to hear that you all had a fun filled workshop from the comfort of your home. Yes, Thank you once again. थैंक यू सुनीता जी। एंड आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन। सबको बहुत, आई थिंक आपने समझाया इतनी अच्छी तरह से है कि सबको बहुत आराम से समझ आ गया कि आपने क्या क्या किया है। हाँ, नहीं मतलब यू नो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होता हाउ राइट, टू यूज देम। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ भी एक्सपेंसिव या कुछ भी बहुत बाहर से खरीद के नहीं लगाया। ये टेरेनियम्स मैं अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ। और ये मैंने आपको बताया, बाग मैंने ट्री के नीचे से उठाया, उसको पेंट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट ऐड करने से कितना सुंदर लग रहा है मेरा ये पूरा मतलब सेटअप। तो मतलब आपके पास आइडियाज होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपकी, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सुनीता जी ने आज हमें सिखाया हाउ टू सेट अप योर टेबल्स फ्रॉम सिंपल थिंग्स एट होम। आपको कोई बाजार जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने बाहर गार्डन में निकलिए, वहां से जो आपको लगता है ना सब बेकार पड़ा उठा लाइए, पेंट करिए और सजा दीजिए टेबल पे। हो गई फेस्टिव डेकोर। राइट सुनीता जी? एंड ऑलवेज रिमेंबर टू मेक द क्रिएटिविटी स्टैंड आउट। यू डू नीड टू पुट इन अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स, दैट्स इट। और कैसे नैपकिन फोल्डिंग करते हैं, सिंपल रोजेस। आई लव द रोज नैपकिन फोल्ड। तो सुनीता जी फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन, आई वुड रियली थैंक यू फॉर joining us today and teaching us good table कौन सा laying वीडियो session. मेरे को दिखा देना। And with हाँ, that, I would thank all my audience also, and I would like to tell you that tomorrow again we have a session. ये session हमारा last Monday था, जो for some reason हमारा डॉक्टर साहब का था last Monday session। और क्योंकि वो busy थे किसी health ministry के session में, तो हमारा जो सेशन था ये कैंसिल हो गया था। सो दिस सेशन इज टुमारो with Dr. Mohit Gupta. He will tell us how to have a healthy heart. So this has nothing got to do with wasting time. somebody is saying thank you to my servant also. So, That's really great. That's really great of her. so अब हम कल मिलते हैं, same time, same place, and we learn about our good well-being of our heart from Dr. Mohit Gupta, who's a cardiologist at GB Pant Hospital. So see you all tomorrow, and thanks for joining us today.